Students, welcome to the explanation of grade 5th English chapter number 12, which is basically part 2 of your chapter number 11. So they sat down and listened while the Oze told the following tale. I was born in Omaha. When I grew up, I became a ventriloquist, and at that I was very well trained by a great master. I can imitate any kind of bird or a beast. Here he meowed so like a kitten that Toto pricked up its ears and looked everywhere to see where it was. After a time, continued the Oze, I was tired of that and become a balloonist. ओजे अपनी कहानी बताता है। सारे के सारे डॉर्थी, स्कैरक्रो और टिन वुडमैन और लाइन वहाँ बैठे। वो कहता है मैं ओमाहा में जन्म हुआ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं एक वेंट्रिलोक्विस्ट बना जिसमें मैं चीज़ों को इमिटेट कर सकता था। मैं बर्ड को ले लो, कोई राक्षस, कोई वाइल्ड एनिमल, कुछ भी हो मैं उन्हें इमिटेट कर सकता था। यहाँ पे तो ओजे ने आवाज़ की एक किटन की, तो टोटो ने अपने कान उठा के यहाँ वहाँ देखने लगा कि बिल्ली है कहाँ पे। फिर वो बताता है कि थोड़े टाइम के बाद मैं ये सब चीज़ों से बहुत बोर हो गया, तो मैं एक बलूनिस्ट बन गया। What is that? asked Dorothy. A man who goes up in a balloon on a circus day so as to draw a crowd of people and get them to pay to see the circus. He explained. डॉर्थी पूछती है वो क्या है, तो वो बोलता है कि ऐसा इंसान जो सर्कस में बलून के ऊपर जाता है जिससे लोगों का ध्यान उस पर आए और वो पैसे दे। ओ शी सेड आई नो। अच्छा हाँ, ये तो मुझे पता है, ऐसा डॉर्थी कहती है। वेल वन डे आई वेंट अप इन बलून एंड द रोप्स गॉट ट्विस्टेड सो दैट आई couldn't come down. For a day and a night, I traveled through the air. On the morning of the second day, the balloon came down gradually. I found myself in the midst of a strange people who, seeing me come from the clouds, thought I was a great wizard. Of course, I let them think so because they were afraid of me and promised to do anything I wished them to. फिर एक दिन मैं वैसे ही बलून पे गया था, पर वो रोप टूट गई और मैं हवा में रह गया। दिन रात तक मैं वहीं पर ही हवा में रहा। फिर फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग में बलून अपने आप, जब उसकी हवा कम हुई तो ज़मीन पे आया और मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानता था और लोग भी मुझे देख के डर गए थे। लोग मुझे जादूगर समझ रहे थे क्योंकि मैं ऐसे बादलों के बीच में से आया ना, तो लोग मुझे जादूगर समझ रहे थे और वो लोग मुझसे डर भी रहे थे और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, तो मैंने भी उन्हें सच नहीं बताया। Just to amuse myself and keep the good people busy, I ordered them to build this city and my palace. उन्हें ही अम्यूज़ करने के लिए और अच्छे लोगों को बिजी रखने के लिए मैंने उन्हें एक ऑर्डर कर दिया कि वो एक सिटी बनाए और एक पैलेस बनाए मेरे लिए। They did it willingly and well. Then I thought, as the country was so green and beautiful, I would call it Emerald City. To make the name fit better, I put green spectacles on all the people so that everything they see is green. और मैं भी इतना खुश था ये सब चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि इतनी ब्यूटीफुल सी कंट्री है, ग्रीन है और ब्यूटीफुल है, तो मैं इसका नाम एमरल्ड सिटी रख दूंगा। और इसके नाम के साथ फिट करने के लिए मैंने सारे लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर के चश्मे पहना दिए। पहना दिए जिसकी वजह से वो जो भी चीज़ देखते थे वो सब उन्हें ग्रीन कलर की दिखती थी। बट इजंट एवरीथिंग हियर ग्रीन? आज डॉर्थी पूछती यहाँ पे सब कुछ ग्रीन नहीं है क्या? No more than in any other city, replied the Oze, but when you wear green spectacles, everything you see looks green to you. उतना ही जितना हर सिटी में होता है, बट जब तुम ये ग्रीन चश्मे पहनते हो तो तुम्हें सब कुछ ही ग्रीन दिखने लगता है, ऐसा ओजे कहता है। One of my greatest fears were the witches. For a while I had no magical powers at all. I soon found out that witches were really able to do wonderful things. There were 4 of them in this country and they ruled the people who lived in north, south, east and west. Fortunately, the witches of the north and south were good and knew they would do me no harm, but the witches of east and west were terribly wicked. And had they not thought I was more powerful than they themselves, they would surely have destroyed me. I am happy that you have destroyed both the witches. मेरा सबसे बड़ा डर यहाँ पे था वो विचेस। मुझे पता था कि विचेस के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं और यहाँ पे तो 4 विचेस थी जो हर एक डायरेक्शन से ये कंट्री को रूल करते थे। फॉर्चुनेटली जो नॉर्थ और साउथ की विच है वो तो बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं देगी, बट जो ईस्ट और वेस्ट की है वो तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अगर उन्हें पता चलता कि मेरे पास मैं इतना पावरफुल हूँ तो वो पक्का मुझे परेशान करती, बट मैं उसमें भी लकी हूँ कि तुम लोगों ने उन्हें मार दिया है। आई थिंक यू आर अ वेरी बैड मैन, सेड डॉर्थी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंसान हो।
Oh no, my dear, I am really a very good man, but I am very bad wizard, I must admit. वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, बट मैं एक बहुत ही बुरा जादूगर हूँ. Can't you give me brains? Asked the scarecrow. You don't need them. You're learning something every day. A baby has a brain, but it doesn't know much. Experience is the only thing that brings knowledge, and the longer you are on the earth, the more experience you are sure to get. स्कैरक्रो बोलते हैं इसका मतलब है तुम मुझे ब्रेन नहीं दोगे. तो ओजे बोलता है तुम्हें उसे ज़रूरत भी नहीं है. तुम हर रोज़ ही दिन भर दिन डे बाय डे तुम कुछ ना कुछ सीखते हो. एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पास भी ब्रेन होता है, बट उसे कुछ भी पता नहीं होता. वो एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस डे बाय डे जो एक्सपीरियंस करता है उससे वो सीखता है. ठीक है. तो जब तक तुम इस दुनिया में रहते हो तुम कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखते हो और एक्सपीरियंस से ही तुम में नॉलेज आता है. That may all be true, said the scarecrow, but I shall be very unhappy unless you give me a brain. वो सब तो ठीक है, स्कैरक्रो ऐसे बोलता है, बट अगर तुम मुझे ब्रेन नहीं दोगे ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा. Okay, so this was the part 1 of the explanation of chapter number 12. Kindly move to part 2.